तो हंस लेना चाहिए बहुत अच्छा हुआ तो वो भी नोट करना चाहिए, और अगर कोई कमी रह गई तो वो जरूर नोट करना चाहिए।
साउंड होगा सर, वी डोंट नीड टू होल्ड द सेल्फी स्टिक। Forward the left, like this. We go like this. And like it is, again turn this way. Very good. Turn clockwise ही होगा. हाँ sir. Yes sir. Because we had that algorithm according 90 degree या 270. एक्चुअली जो बांग्लादेश में जो घुसपैठ होती है पानी के लिए वहाँ इतने एक्सपर्ट कवर्स हैं पेट्रापोल बॉर्डर में जो 2-2 किलोमीटर तक अपने एक पैर में मोटरसाइकिल बांध देते हैं या गाय को बांध देते हैं और उसके साथ स्विम करते हैं 2 किलोमीटर तक अंडर वाटर स्विम करते हैं।
Priyanshi Bharadwaj, welcome you all on behalf of entire MIT family on high-tech inaugural function. We welcome our chief guest, Shri Nitin Tiwari ji, SSP Muradabad, to this event. Since we all know that it has been our tradition to light the lamp before the start of any event, so we would like to request our chief guest and all the dignitaries for the Chairman MITGI, to present a bouquet to our chief guest, Shri Nitin Tiwari ji, SSP Muradabad. Thank you, sir. Now we will request Shri Vaiti Gupta ji. Now I would humbly like to request Shri Arvind Goyal ji, Trustee MITGI, to present a garland to our chief guest. Since we all are gathered here for the inaugural ceremony of HITECH, so let us all know what HITECH is. HITECH is the annual Science and Technology Festival of MIT, which is going to be held on 11th and 12th of March this year. It also refers to the independent body of students who organize this presentation. The very first edition of HITECH was organized in the year 2004. So, it has been 12 years we are successfully conducting HITECH with full enthusiasm. The underlying spirit of the competition is technology is fun, a motto that has been followed by every tech fest since. Our feelings for our college, we would like to request Akhil Chaturvedi, Paras Manchanda and Shantanu Bhatnagar to present MIT Kulgeet. शत शत नमन शत शत नमन शत शत नमन आज मुझे तमन पुलकित होकर बार बार करता है शिवा आज मुझे तमन पुलकित होकर बार बार करता है शिवा शत शत नमन MIT की धरती चलता रहे तेरा अभियान शत शत नमन MIT
welcome all of you on behalf of the MIT Group of Institutions and my own behalf to this inauguration of the High-Tech event, which is organized every year in London. The importance of this High-Tech is that apart from the academic excellence which we are aiming at, we are also training our students for their extracurricular activities, the overall personality development. And this High-Tech event is one of those activities. Every year, our students on their own, will be having the models exhibition, software exhibitions, as we have seen, just an impression or the glimpses of our activities in this direction. But our students are, right from the beginning, they are trained for this skill development program. In this short time, I would not like to take much of your time. And I once again thank you very much for giving us your precious time for this. Thank you. मैं चाहता हूँ वो भारतवर्ष के, अब ये क्या कहने वाला हूँ, राष्ट्रीय गीत जन गण मन को पूरे विश्व में सबसे बढ़िया माना गया है। आज से कितने वर्ष पहले, 105 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा होगा। उन्हें क्या पता था कि 111 साल बाद भी उनकी जयगान होगी। हम अपने मुख्य अतिथि जी का बहुत 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 स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. ASP मुजफ्फरनगर, ASP मेरठ, SP जलौन, SSP मुजफ्फरनगर, SSP गाजियाबाद, SSP बुलंदशहर, कमांडेंट 44th बटालियन PAC मेरठ, SSP अलीगढ़, SSP मथुरा, कमांडेंट 15th बटालियन PAC आगरा, SSP सहारनपुर, and presently he is handling the post of SSP Muradabad. We thank you, sir, for gracing this event with your aura, and we welcome you wholeheartedly on behalf of the entire MIT family. नमस्कार साथियों, एक हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने इतने दिन बाद वापस मुझे एक टेक फेस्ट में बुलाया। और जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो आई यूज्ड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन माय टेक फेस्ट, और अलग अलग तरह के काम हम लोगों ने किए हैं। उस समय नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक नए टेक्नोलॉजी के रूप में उभर रहा था। आई एम श्योर इट मस्ट बी ओल्ड बाय नाउ बिकॉज वी आर गेटिंग ओल्ड एज दे प्रोसीड। देख के नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशंस को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैकेनिकल हुआ करती थी, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटल होती जा रही हैं। कोई हमारे टाइम पे मैकेनिकल वॉशिंग मशीन बनाया करता था, कोई कुछ बनाया करता था, कोई साइकिल ड्रिवन वॉशिंग मशीन बनाया करता था, कोई कुछ करता था। लेकिन अब आज मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो एवरीबडी वांट्स इट टू बी ऑन द क्लिक ऑफ देयर हैंड्स, और सब ये चाहते हैं कि SMS से सारा काम हो जाए। तो ये कुछ हद तक अच्छी भी बात है, लेकिन मैं तो देखिए आप लोगों को दोनों ही चीज़ें बताऊंगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज के युग में जितने भी बच्चे हैं वो सब टेक्नो सेवी हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट जो है, जो उनकी फिजिकल फिटनेस का एस्पेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं वो लोग मिस कर रहे हैं। और वो लॉन्गर मतलब आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस वाला एस्पेक्ट भी आपको लेके चलना है। टेक्नोलॉजी में तो देखिए आप लोगों को लगातार अपना ब्रेन यूज करते रहना, नए नए इन्वेंशंस, क्योंकि यू नेवर नो अ वेरी स्मॉल आइडिया मे गेट यू ए नोबेल अवार्ड। मैंने तो यही देखा है हमेशा, जितने भी नोबेल अवार्ड इन साइंटिस्ट को मिले हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो और बड़े बड़े लोग हों, तो बहुत छोटे छोटे आइडियाज जो होते हैं बड़े बड़े जनरेट मतलब बड़े बड़े साइंटिफिक इनोवेशंस का कारण बनते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, इस काम को फाइनल तक अंजाम जरूर दें। हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के उसकी वहीं पर रजिस्ट्री कर लेते हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, अभी मैंने एक ड्रोन देखा, तो एक कहीं से मेरे दूर दराज के कुछ जानने वाले लोग थे, तो आप लोगों ने 3 इडियट्स करके मूवी देखी होगी, तो 3 इडियट्स में भी एक ड्रोन था, आप लोगों ने देखा होगा। था वो जो
कमरे पे उड़ के जो है वो एक, तो वो ड्रोन दैट वाज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय नया बन रहा था। नाउ दैट कंपनी, वो IIT के ही लड़के हैं, वो कंपनी ने अपना ड्रोन जो है उसके सोफिस्टिकेशन पे ध्यान दिया। 4 लेगेड ड्रोन से 6 लेगेड ड्रोन पे पहुंचे, 6 लेगेड से 8 लेगेड ड्रोन पे पहुंचे। वो मतलब खुद कर रहे हैं, इनोवेटिंग इट देमसेल्व्स। और वो अब उसमें सोफिस्टिकेशन हासिल करते 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 अब उनका ड्रोन जो है वो ऐसा हो गया है जो 5 किलोमीटर हवा में जा सकता है, 50 मिनट तक वो हवा में रह सकता है। मतलब इस तरह का ड्रोन जो कम से कम 5 किलो तक वजन उठा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब जो ड्रोन उन्होंने तब बनाया था उसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, लेकिन जिस प्रोडक्ट पे वो आज पहुंच गए हैं या जो चीज उन्होंने आज इन्वेंट कर ली है उसकी कीमत भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर द ओनली topmost drone making company in India, a very small startup venture of around 3 to 4 IITians. तो मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप काम करें, जैसे यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैं देख रहा हूँ, तो ये सारे प्रोजेक्ट को आप अपने आयाम तक पहुँचाएं, आप उसको फाइनल लेके जाएं। आपके मन में क्या है, मतलब क्या मन में सिर्फ इतना तो नहीं था कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना, मन में तो ये होगा कि ये कहीं फाइनल तक जाना चाहिए, और फाइनल क्या है वो आपको डिसाइड करना है। थोड़ा बहुत पैसा भी लगेगा, आई एम श्योर शुरुआत में तो कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा इनवाइटिंग हो जाएगा, अपने आप फर्म्स आ जाएंगे, अपने आप लोग आ जाएंगे, अपने आप एसोसिएट होते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने देखा किसी एक लड़के ने मोटरसाइकिल में लगाने के लिए सेफ्टी गैजेट बनाया कि अगर कोई चोरी कर लेता है तो उस मोटरसाइकिल को पकड़ लेगा, लेकिन वो इतना बड़ा उसने बनाया। तो मैंने फिर उसको हल्का सा एक क्लू दिया कि आप डिजाइन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल और करिए, मेक योर इंस्ट्रूमेंट वेरी स्मॉल, इतना बड़ा बनाइए उसको, मतलब इतने फीचर जो आपने इतने में डाले उसको इतने से में आप उसको कन्वर्ट करें। तो ऐसा अगर आप करेंगे धीरे धीरे, वैसे मेरी फील्ड अब बहुत अलग हो चुकी है, पहले जैसी फील्ड अब नहीं रही, लेकिन फिर भी जो आइडियाज मुझे आते हैं वो मैं अपने प्रोफेशन के अंदर भी जो अपने टेक्निकल आइडियाज हैं उनको भी मैं अप्लाई करता हूँ। और वंस ए टेक्निकल ब्रेन ऑलवेज अ टेक्निकल ब्रेन, ऐसी एक कहावत रहती है। तो एक बार आपका जो सोचने का एनालिटिकल अप्रोच अगर आपकी है तो थ्रू आउट रहेगी, चाहे आप कैसा भी काम करें, तो यू विल डू इट द सेम वे। तो दैट इज व्हाट आई वाज। ये बात और कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने जो सीखा है उसको समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए लगाना जो है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में जब आप टेक्निकल स्किल्स लेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, आपको भी पता है इंजीनियरिंग कैसी होती है, हमें ही पता है कि आदमी कितना सीख जाता है इंजीनियरिंग में। तो मेरे ख्याल से इंजीनियर एक ऐसा प्राणी होता है जिसको सब कुछ भी पता होता है और कुछ भी नहीं पता होता है। और एज एन इंजीनियर नेक्स्ट डे हमसे उम्मीद रहती है कि हम किसी फाइनेंशियल फर्म या बैंक में जाके भी बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे जैसे हमने कॉलेज में किया। तो ये तो मतलब दिस इज सम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दैट वी हैव व्हाइल डूइंग इंजीनियरिंग। तो ये हमारे को सभी फील्ड में सब जगह काम करते हैं। ऑन दी अदर वे डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर बेचारा फिक्स हो जाता है, उसको उसी फील्ड में काम करना है, हमेशा वही रहना है। माय सिस्टर इज अ डॉक्टर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि जो भी आप करें उसका एक अप्रोच आप ये जरूर रखें कि इसको लौटा के मुझको आई हैव टू गिव इट टू द सोसाइटी बैक। व्हाई? क्योंकि अभी आपको टिल द टाइम यू आर 30 you will have your own personal dreams, aspirations, you will have eagerness to earn money because money is required for sustenance, for carrying on your life, having a मतलब going for your achievements। भाई आपकी फैमिली है, उसके सस्टेनेंस पे भी आपको ध्यान देना है, बहुत सारी चीजें और हैं, you will grow your family, बहुत सारी बात है। तो शुरुआत में तो मनी की रिक्वायरमेंट नहीं, बट देन आफ्टर एज ऑफ अराउंड 30-35 बहुत सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए होंगे जो 30-35 का बैरियर क्रॉस कर चुके होंगे। एक फीलिंग दोबारा से लौट के आती है जब हमारा लड़कपन खत्म हो जाता है कि अब व्हाट हैव आई गिवन बैक, आई हैव टेकन अ लॉट फ्रॉम द सिस्टम हैज गिवन मी अ लॉट, सिस्टम हैज एजुकेटेड मी, सिस्टम हैज मेड मी ग्रो इन वेल्थ, ग्रो इन माइंड, ग्रो इन एबिलिटी, ग्रो इन कैपेबिलिटी, लेकिन व्हाट हैव आई गिवन बैक, एक ऐसी फीलिंग आती है। और वो जो
ये जो बात है कि व्हाट हैव आई गिवन बैक, वो दैट शुड आल्सो बी देयर इन यू, ये आप में होना चाहिए। और जितना जल्दी ये आपको आता है, जिस भी स्टूडेंट को आए या जिस प्रोफेसर को आया, आई डोंट नो, मेरा ये मानना है उतना जल्दी वो ग्रो किया है। तो ये चीज तो देखिए आपको देनी पड़ेगी। आप बाहर जाएंगे तो भी आपको अपने देश में करेंसी भेजनी पड़ेगी, अपने माँ बाप के लिए या शायद किसी चैरिटी के लिए या किसी और के लिए। ये पर्सपेक्टिव जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे अपना काम नहीं, मुझे तो सबको लेके चलना है। जब आपके मन मस्तिष्क में ये वाली बात आ जाएगी तो आई थिंक यू विल बी अ कंप्लीट सिटीजन। यू विल, मतलब आप अपने देश का जीडीपी भी बढ़ा रहे होंगे। आप खुद अर्न कर रहे हैं तो आप देश का तो फायदा कर ही रहे हैं, ठीक है। आप खुद अर्न कर रहे हैं तो देश को आप टैक्स भी दे रहे हैं, तो टैक्स दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो देश का फायदा डेफिनेटली आप कर रहे हैं, तो वो काम भी आप कर रहे हैं। ऑल्सो यू आर गिविंग बैक व्हाट यू हैव लर्न। तो इस दोनों तरीकों से आप देश की, समाज की सेवा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग स्वयं अब नई जनरेशन है और नहीं चाहते होंगे बहुत ज्यादा आपको सिखाया भी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ही की तरह मैं भी इसी तरीके से आगे बढ़ाऊं धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस। मैं भी नहीं चाहता था कि मुझे कोई समझाए या सिखाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि कभी कभार अच्छी बातें ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप लोग की अभी कम बढ़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने एक अच्छे टेक्फेस्ट में मुझे इन्वाइट किया। मैं पूरे मैनेजमेंट को, अरविंद जी को, अग्रवाल जी को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा टेक्फेस्ट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया। लोगों के हिडन टैलेंट को, उनकी सोच को, उनके ब्रेन को आप लोगों ने आगे बढ़ने का मौका दिया। और उम्मीद करता हूँ ये टेक्फेस्ट जैसा इस साल हुआ है, इससे और बढ़ के अगली साल नेक्स्ट ईयर हो, नया टैलेंट ओपन हो टेक्फेस्ट में। मैं और आप लोगों से चाहूँगा अलग अलग कॉलेजेस को भी बुलाया जाए ताकि उसमें एक अवार्ड दिया जा सके। हम लोगों के कॉलेज में भी टेक फेस्ट हुआ करते थे और कल्चरल फेस्ट हुआ करते थे, तो वो सब भी कराने की आप कोशिश करें और अच्छे से अच्छा काम करें। जय हिंद, जय भारत। Now, I would like to request Shri Neeraj Kumar Vivaji to present a token of regard to our king. सर उधर आओ साइड। थोड़ा ना इसको घुमा के इसके बराबर में लगा दीजिए। अर्जुन इसको अर्जुन ये बात अर्जुन सब देखिए पहले से ही लगवाया, पहले से ही है। देखिए देखिए बहुत बढ़िया। एक सेकंड लगेगा। अरविंद जी आइए। आप लगा लें सर आइए। सर को थोड़ा सा आगे ले लीजिए। कैमरा जाएगा उसका ये।